Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students of standard 5th to this MCGM Municipal Corporations Greater Mumbai's online VTC class. And students, today we are going to learn about angle. So in last session also we discussed about angles and type of angles. And in this session, students, we are going to start from how to draw an angle with the help of the degree normally. So just we have to observe it first, and then we are going to solve the exercises. Okay. So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि दी हुई पैमाइश का जाविया बनाना है. ओके. So to draw an angle of given measures, so here draw ABC of measure 70 degree. यहाँ पर हमें जो है तो 70 दर्जे का एक जो है तो 70 दर्जे की पैमाइश का एक जाविया बनाना है. ओके. फर्स्ट हाउ टू make an angle. So first draw a side BC using a ruler. So we just marked it off the same. First draw the side BC, and then we are supposed to give it the name BC. Then we have to draw a 70-degree angle at B, as B is the vertex. यहाँ पर हमें जो है तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है तो जाविया बनाना है. ठीक है. कितने दर्जे का? 70 दर्जे का हमें यहाँ पर जाविया बनाना है. तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, और बी जो है तो यहाँ पर इसका नुक्ता मरकज है. ठीक है. चांदी का मरकज हमें नुक्ता बी पर रखना होगा, है ना. प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट बी. ओके. प्रोटेक्टर भी कहते हैं हम इसे, डिग्री भी कहते हैं, डी भी कहते हैं ना. सो just you see here where is the point. So here is the point, right? Okay, this one is the point where we fix this protector. यहाँ पर हमने चांदे को यहाँ पर रख दिया इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि काउंट करना है हमें 70. ओके. सो while we are going to start it, we are supposed to start from the 0, right? This is the 0. So 10, 20, then 30, then 40, then 50, then 60, then 70. Okay. So here is the 70 mark. This one is a 70 mark here. Okay. So place the center of the protector at B and then mark it like this one. So what suppose we have to do now? We just pick out this one here, the protector. Now you are looking a 70-degree angle here. Keep the protector in such a way that the baseline coincides with side BC, as we have done this one. And look at the markings increasing serially from mark 0, as we have done this. Okay. So these are the guidelines how to make the angle. Okay. Now make a point, a mark at 70 with a pencil. We marked it from the red pen here. Okay. Then remove the protector, name the mark A, draw side BA. Thus we have drawn angle ABC of measure 70. तो यहाँ पर हम जो है तो बच्चों यहाँ पर हमने नाम दे दिया है. इसके नाम देने के बाद हमने यहाँ पर 70 का जो है तो ये एंगल बनाया है. इसे 70 डिग्री यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है. और आपने देखा यहाँ पर हमने इस एंगल को नाम दे दिया, एंगल ABC. ओके. सो दिस इज द एंगल. Thus we have drawn angle ABC of measure 70 degree. Okay. So like this we can measure the angle like with the help of protector. And then we can make the angle
in this way. Now we are supposed to do here the exercise, and there is a question number 1. What is before going to that question, we are just observing. Draw and name the following angles with the help of the protractor. So first we are supposed to make angle of 60 degree, okay, with the help of the protractor. So here is a 60 degree angle we are supposed to mark here, okay. तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने 0 से 10, then 30, then 40, then 50, then here is a 60, okay. So we are supposed to mark on 60, and afterwards we are supposed to mark on this 70 degree like this. तो इसके बाद हमने यहाँ पर डिग्री हटा देना है बच्चों इस तरह से, और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर नाम देना है. तो दिस इज द PQR एंगल, इस तरह से हमने इसे नाम दिया है, ओके. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो दूसरा एंगल देखेंगे बच्चों. दूसरा एंगल हमें यहाँ पर बनाना है. वो एंगल हमें कितने डिग्री का बनाना है, तो आप देखेंगे वो एंगल हमें जो है तो 120 डिग्री का बनाना है, ओके. तो 120 डिग्री का ये एंगल हमें यहाँ पर बनाना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, then 20, then 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 this one, ओके. तो यहाँ पर हमने 120 पर मार्क किया है इसे, और आप देखेंगे यहाँ पर 120 पर ये एंगल हमने बनाया है, ठीक है. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इससे हमने यहाँ पर 120 का एंगल है ये, और हमें यहाँ पर इसको नाम दे देना है ना. तो ये हो गया हमारा x, ये y और ये z हो गया, ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको पढ़ना है ना. 120 जो डिग्री का जो एंगल है उसे हमें यहाँ पर नाम देना है. तो ये एक्स वाई जेड, क्या नाम दिया हमने इस एंगल एक्स वाई जेड हमने इसको नाम दिया है, ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके. सिमिलर वैसा ही हमें यहाँ पर करना है. यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल लेना है. कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. तो 90 डिग्री का एंगल अगर हमें यहाँ पर लेना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 है, 20 है, then 30, then 40, then 50, then 60, 70, 80, and this one is a 90, okay. तो this one is a straight angle, है ना. यहाँ पे हमें सीधा सीधा लाइन खींचना है. तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से मार्क किया है इसे. तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 90 डिग्री का हमारा एंगल यहाँ पर बन गया है, ठीक है, इस तरह से. अब यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर हटा दिया है. प्रोटेक्टर हटाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने मार्क किया है 90 डिग्री के लिए जो एंगल हम यूज करते हैं उसके लिए ये साइन का यूज करते हैं ऐसे, ठीक है. सो दिस वन इज अ 90 डिग्री एंगल, ओके. अब इसे यहाँ पर हमें नाम देना है. यहाँ पर नाम दिया हमने L, ये M हो गया, और ये N हो गया, ठीक है. ये L M N ये नाम दिया हमने इसे, और इसको हमें यहाँ पर इस तरह से देखना है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो है angle LMN. This one is a 90 degree angle, this one, okay. Like this we are supposed to make the angle. तो बच्चों हमने यहाँ पर जो है तो ये एंगल बनाने हैं, ठीक है. जो ये एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की, ये इसका थर्ड क्वेश्चन था. Now we'll move for the fourth question here, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर. फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे 150 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींचा है पहले, ठीक है, रोलर की हेल्प से. क्या करना है हमें सबसे पहले, फर्स्ट ड्रॉ द साइड हेयर विद एनी नेम विद द हेल्प ऑफ द रूलर. और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वी हैव टू प्लेस द प्रोटेक्टर हेयर on any point, and now we are supposed to mark on the
150 angle is we are supposed to make now. So this one is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, then this one is a 50. Okay, so like this we are supposed to mark on 50. So this is the 150 degree angle is on your screen like this. Okay, अब उसके बाद हमें यहाँ पर 150 की डिग्री के एंगल पे नाम दे देना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ए है, नाम दिया हमने इसे, फिर उसी तरह से बी हो गया ये, है ना, और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 150 का जो एंगल है उसको नाम दिया हमने एंगल ए बी सी इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 30 डिग्री का एंगल हमें क्रिएट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ द line here with the help of the ruler, then place the protector here on this point, and after one we are supposed to mark on 30. So this one is 10, this one is 20, this one is a 30. Okay, so we are supposed to mark on this one 30. So mark करने के बाद हमें यहाँ पर जो है तो इस तरह से डिग्री हटा देना है, और यहाँ पर जो है तो 30 का एंगल हमने यहाँ पर खींच लेना है इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो PQRST हमने इसे नाम दिया है इस एंगल को। ओके, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो इस तरह से 30 डिग्री लिखना रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो इस एंगल का नाम दे देना है, एंगल RST इस एंगल का नाम है इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों इस एक्सरसाइज का। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके 165 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। कितना है? 165 का है। ओके, सो वी आर सपोज टू प्लेस द डिग्री है। यहाँ पर डिग्री हमने रख दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों की, यहाँ पर 10 से लेके जो ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, तो आप देखेंगे 165 तरह का नहीं, ये 60 है, और 60 के बाद का पॉइंट ये 65 का पॉइंट है। ओके, तो यहाँ तक के हमें आना है ना इस तरह से। यहाँ से काउंटिंग करते हुए हमें यहाँ पर आना है। ठीक है, सो 165 पर हमने मार्क किया, उसके बाद हमने यहाँ से ये हटा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर ये एंगल बन गया है। इस एंगल को हमें यहाँ पर नाम देना है UVW, इसका नाम है। ठीक है, इस एंगल का, और कितनी डिग्री का है ये? 165 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, अब इस एंगल को हमने नाम दे दिया है एंगल UVW, एंगल का नाम हमने इसको दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है तो इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 45 डिग्री का हमें एंगल क्रिएट करना है। ओके, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे इस तरह से, और ये जो प्रोटेक्टर का ये मार्क है इसको बिल्कुल जो है तो आप देखेंगे कि कॉर्नर पे हमें यहाँ पर रखना होगा इस लाइन के, और इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो ये जो हमने प्रोटेक्टर रखा उसके बाद हमने जो है तो यहाँ पर 45 पर मार्किंग करना है ना। 45 पर हमें यहाँ पर हल्का सा पॉइंट इस तरह से लगा देना है। ओके, उसके बाद प्रोटेक्टर हमने हटा दिया यहाँ पर, और फिर लाइन खींच दी इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसेस एवरी टाइम आपके लिए अप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर नाम दे देना है EF, ये जो है तो यहाँ पर हमने नाम दिया E, और यहाँ पर ये हमारा D हो गया। ठीक है, तो DEF ये हमारा एंगल यहाँ पर बन गया इस तरह से। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर कितने डिग्री का है तो यहाँ पर लिख देना है 45 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इजीली हम इस तरह से ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आपको खुद करना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपने किया है, इसके बाद आपको खुद इस तरह से ये सारे एंगल्स बनाने हैं, 60, 120, 90, then 150, then 30, then 165 and 45. So these all angles you are supposed to do by yourself only. इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इससे हम यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ एंगल्स
यानी जावियों की किस्में हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टाइप ऑफ एंगल्स, यानी जावियों की किस्में। अब जावियों की मुख्तलिफ किस्में हैं, हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। एक हल्का सा यहाँ पर रिपीटेशन हम कर रहे हैं इसका। सबसे पहले हम यहाँ पर जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो एंगल है राइट एंगल, यानी कि कायमा जाविया। तो कायमा जाविया हम किसे कहते हैं? तो कायमा जाविया जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है, इस जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों राइट एंगल को, ये राइट एंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल जो है। तो ठीक है, और इसका मार्क हमें याद रखना है। 90 डिग्री का जो एंगल है इसको हम यहाँ पर जो शो करते हैं वो इस मार्क से शो करते हैं। ओके, सो ABC इज अ राइट एंगल, द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ABC जो एंगल है वो एक 90 डिग्री का एंगल है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है इस जाविये को कायमा जाविया कहते हैं, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम एक्यूट एंगल देखते हैं, यानी कि हादा जाविया। हादा जाविया हम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर हमने इस जाविये को बनाया है। इस जाविये को आप देखेंगे कि ये जाविये का नाम हमने यहाँ पर दिया है जाविया RST है, एंगल RST दिस वन। और आप देखेंगे द मेजर्स ऑफ angle RST is less than 90 degree. The angle is smaller than a right angle is the called acute angle. तो यहाँ पर हमें देखना है बच्चों की जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है, कायमा जाविये से कम होती है, उस जाविये को हम जो है तो हादा जाविया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस जाविये को, है ना, ये जाविया जो है तो 90 दर्जे से कम है इसकी पैमाइश, है ना, तो इस जाविये को हम हादा जाविया कहेंगे इस तरह से। इसी तरह से अब आते हैं हम एप्ट्यूस एंगल पर। तो एप्ट्यूस एंगल में यानी मुनफरजा जाविया जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये एक मुनफरजा जाविया है जिसकी पैमाइश जो है तो 90 दर्जे से ज्यादा है ना। यहाँ पर अगर आप इसकी पैमाइश देखेंगे तो आपको, अगर यहाँ प्रोटेक्टर हम रखेंगे तो आप देखेंगे 90 दर्जे से ज्यादा की पैमाइश है इसकी, है ना। द मेजर्स ऑफ MNL NML is greater than 90 degree. The angle greater than a right angle is called the obtuse angle. जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा और 180 से कम होती है इस जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है बच्चों की कायमा जाविये से बड़े जाविये को हम मुनफरजा जाविया कहते हैं। ठीक है, इसकी पैमाइश जो है तो 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, आपने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था 180 दर्जे की जो पैमाइश है उस जाविये को हम क्या कहते हैं ना, और जो 180 से कम और 90 से ज्यादा हो वो जाविया क्या है? वो जाविया मुनफरजा जाविया है जो हम स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एप्ट्यूस एंगल है बच्चों। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ एंगल्स देखा है, इसमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एप्ट्यूस एंगल देखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं हम यहाँ पर? मुतवाजी खुतूत जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों कि ये लाइंस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन है ना, एकदम सीधी लाइन है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है द सेगमेंट डू नॉट मीट ईच अदर हाउएवर मच दे आर एक्सटेंडेड। अगर हमने इसे आगे कितना भी बढ़ाया, इस तरह से देखिए कितना भी हमने इसे आगे बढ़ाया, these segments are parallel। अगर हमने इसको कितना भी आगे बढ़ाया तो ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ना। So in the figure the segment do not meet each other however much they are extended. These segments are parallel. Parallel lines do not intersect, that they do not cut each other no matter how far they extended on either side। तो हम देखते हैं बच्चों कि ऐसे खुतूत जो एक दूसरे को किता ना करें और इनका दरमियानी फासला जो है तो मुतवाजी हो, मुतवाजी फासला हो ना इनका,
यहाँ इनका जो फासला है वो बराबर होना चाहिए एवरी टाइम, ठीक है। तो इन जावियों को हम जो है इस तरह की जो लाइन है वो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे कि इसके दरमियानी फासला एवरी टाइम जो है तो एक जैसा होना चाहिए, यकसा होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि इनका जो दरमियानी फासला है एवरी टाइम वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे पैरेलल लाइन कहते हैं, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब हम यहाँ पर इसके बाद उमूदी खतूत के बारे में बात करेंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके। तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर में हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि आप इस शक्ल का मुशाहिदा करेंगे, अभी हम जो शक्ल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इस शक्ल का अगर आप मुशाहिदा करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि इस शक्ल में आपको जो है तो दो खतूत दिखाई दे रहे हैं ना, दो खतूत दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर। एक कौन सा है, BC है, और एक है PQ। इस तरह से दो खतूत देख रहे हैं और नुक्ता Q जो है तो एक दूसरे को के साथ में यहाँ पर 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नुक्ता Q पर जो है तो एक 90 दर्जे पैमाइश का जाविया जो है तो बनता है या बन रहा है, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, है ना। तो जब हम देखेंगे दो खतूत एक दूसरे के साथ कायमा जाविया बनाते हैं तो तब कहा जाता है कि वो खतूत एक दूसरे पर उमूद है, यानी वो दो खतूत उमूदी खतूत है। इस तरह से हमें समझ में आता है। When two lines makes an angle of 90 with each other, they are said to be perpendicular to each other, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है बच्चों, इस फिगर में आप देख सकते हैं लाइन PQ एंड लाइन BC मेक एन एंगल। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन जो है तो आप देखेंगे कि BC पर एक लाइन है, यहाँ पर PQ ये है ना, यहाँ पर जो पॉइंट Q है इस पर। So BC make an angle of 90 at the point Q. It means they are perpendicular to each other. इससे हमें ये बात समझ में आती है कि ये क्या है, ये जो है तो एक दूसरे पर उम्मीद है। इस तरह से हमें यहाँ पर बात समझ में आती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि जब दो खतूत एक दूसरे के साथ कायमा जाविया बनाते हैं तब कहा जाता है कि वो खतूत एक दूसरे पर उमूद है, यानी वो खतूत उमूदी खतूत हैं। इस तरह से ये बात यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये जो हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताई है परपेंडिकुलर के लिए, ये आपने जरूर से समझा होगा। इसके बाद हम 27 जो एक्सरसाइज है इस लेसन के बच्चे उसे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 27 एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। बहुत आसान सवाल है बच्चों, आपको बताना है कि आपके माहौल में दिखाई देने वाली मुतवाज़ी खतूत की 2 मिसालें आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे की जो पटरियां हैं, है ना, रेलवे ट्रैक जिसे कहा जाता है वो है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, अगर आपकी फुट पट्टी है उसकी जो लाइन है उन लाइंस को भी आप देखेंगे तो वो भी आपको पैरेलल लाइंस दिखाई देगी, है ना। इसी तरह से अलमारी के मुकाबिल के किनारे जो हैं, दरवाजे हैं, उनके अपोजिट साइड्स आप देख सकते हैं ना। इसी तरह से सड़क पर बिजली के जो खंबे हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको क्या दिखाई देंगे, वो भी आपको पैरेलल लाइंस की तरह दिखाई देंगे, है ना। खिड़कियों में जो पट्टियां लगी हुई होती है वो भी पैरेलल लाइंस में होती है ना। बहुत सारी जगह पर आप पैरेलल लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अपने तौर पर कोई भी जवाब दे सकते हैं, ये मैंने अपने तौर पे बताए हैं, आप अपने तौर पे कोई भी आंसर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। उसके बाद का सवाल भी आप अपने तौर पर लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही लिखें आप। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों के यहाँ पर जो है दिया हुआ, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस यू कैन सी इन योर एनवायरनमेंट। सो द लेग ऑफ द टेबल एंड इट्स सरफेस। अगर आप देखेंगे कि जो टेबल के नीचे आप देखते हैं कि जो टेबल की मेज और उसकी सतह पर जो पाया लगा हुआ होता है उससे आप देख सकते हैं, है ना। एंड लाइट पोल एंड
ऑन द रोड, इसी तरह से सिग्नल का खंबा है ना, और सड़क पर जो बिजली के खंबे होते हैं वो भी हमें इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ना। तो सिग्नल का जो खंबा है वो आप देख सकते हैं जो ज़मीन पर गड़ा हुआ है, या लाइट के खंबे हैं जो सड़क पर जो है तो लगे हुए हैं, तो उनका भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। या अलमारी के जो मुत्तसिला ज़िले हैं वो भी देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So look at the picture given below. Decide whether the lines given in each pictures are parallel to the perpendicular to each other, and write the answer in the book. So in the box actually. Sorry. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शक्लें देखना है आपको, और ये तय करना है कि नीचे बने हुए चौकोन में या जो है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर लिखना है और बताना है कि खतूत एक दूसरे के मुतवाजी है या उमूदी है, ठीक है। ये आपको बताना है कि उमूदी खतूत है या कि मुतवाजी खतूत है। अब यहाँ पर आप इस खतूत को ऑब्जर्व करेंगे। अब आंसर दीजिए, आप बताइए ये कौन से खतूत है, तो आप बता सकेंगे इसे। ये कौन सा खत, ये कौन से खतूत हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये हमने खींचा है यहाँ पर, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ये कौन कौन से खतूत हैं। तो चलिए, आपने बताया होगा अपने मन में जरूर से। अभी हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। दिस इज द पैरेलल लाइंस, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, मुतवाजी खतूत कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, मीन्स ये उमूदी खतूत है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे दीज आर द पैरेलल लाइंस, ओके, यानी कि ये क्या है, मुतवाजी खतूत है। उसके बाद ये देखेंगे आप यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, यानी कि मुतवाजी खतूत है। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट वन, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ओके, यानी कि ये जो है तो उमूदी खतूत है। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो कुछ भी मालूमात आपको दी है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको जो भी प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर 27 और 26 से जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको सेशन के बाद करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।